Hello and welcome to all my friends from all across the world in today's concluding Thanksgiving video of My Social Responsibility MSR. हम इस वीडियो से एक नई अपॉर्चुनिटी लेते हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं 11 lessons which we have learned from this MSR campaign. मेरी इस छोटी सी उम्र में बहुत किस्मत अच्छी रही है मेरी, जिससे हमको दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बहुत करीब दोस्ती करने का मौका मिला है। इस एमएसआर सीरीज के माध्यम से मेरा प्रयास था कि हम अपने उन व्यक्तिगत मित्रों को, जिनको कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल की है, उनको आमंत्रित करके उनसे एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हमने किया, जिसमें कि 11 अलग अलग वर्टिकल के मेरे दोस्त जो अपने अपने फील्ड में अमेजिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन लोगों ने हमसे दिल खोल के बहुत ही अच्छे से माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया। अब ये हमारा एक प्रयास है कि इस एक सिंगल वीडियो में आपको उन 11 महान विभूतियों की कही हुई बातें कोशिश करेंगे कि एक एक मिनट में, तो टोटल 11 मिनट में आपके साथ सामने पेश है एक कैप्सूल 11 लेसन्स फ्रॉम एमएसआर। अब आगे जो वीडियो चलेगा उसमें आप देखेंगे कि उन 11 लोगों ने हमको नटशेल में क्या माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में संदेश दिया। Is like, yes, it's given, you get involved, the manpower is involved, the financial aid is involved. Finance comes first, manpower comes later, in most of the time in large corporates too. But that's, the term itself was such intriguing and such beautiful term that you coined in. And the way in which it is building momentum and the way we see things happening is wonderful and beautiful. Thanks for bringing this up and putting this to a framework and a structure. It's lovely, Rajat, to see this fructifying the way you're looking at it. Now, if I were to look at it, and I concur with you completely that corporates, I mean, that there are mandates. Government is doing whatever that they have to do. Government is putting their machinery, whatever said and done. I'm not talking about the political part of it, but there's a lot happening. And we are a huge country. The population is big, right? The numbers are 150 million people by talking about. It's not a small number. And the nooks and corners are like diversified and spread out. Now, government is doing their job. Corporates have stepped up and are stepping up in a big way. When I talk to my friends, colleagues, ex-colleagues, the kind of work that the corporates are doing are really, really massive work. But whatever said and done, to connect to the nitty-gritties, a lot of people have gone back. I mean, when I say nitty-gritties, it's like when I see people have been going back to their hometowns and working from their hometowns as work from home or whatever that has happened. These people see ground realities. Corporates can reach to a certain extent. Governments have tried to reach out to a certain extent. But people at ground started coming out, putting their fear aside, putting whatever that the troubles that they have. And I've seen this not just during the pandemic. I've been living in Chennai for the last 21 years now. And I've seen during the cyclonic storms that have hit the city or the state. When the floods happened, we had our massive floods almost inundating the whole city and all. People just came out willingly, without a term, without a responsibility. I mean, there is nothing called a job description for people, right? They just came out and they cooperated and they supported. ये कि मैं ये नहीं मानता कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो हम लोग कोई बहुत अच्छे अनुशासन में और बहुत जिसको कहें कि बहुत ही संयमित और सब कुछ सीखे हुए लोग थे। मुझे लगता है ये वाली जनरेशन हमसे बहुत ज्यादा सीखी हुई है, बहुत ज्यादा जानती है। और चूंकि आपने कहा कि एडिटर्स होते हैं, एडिटर नहीं होते हैं, अब जिसको कहते हैं कि अनचेक्ड मटेरियल जाता है, तो इस पर मैं एक बात कहूंगा। आज
ये यूट्यूबर हाँ हाँ, न्यूज ठीक चैनल जो है वो निरंकुश है, ठीक कोई ठीक बात है, उनके ठीक। ऊपर कोई एडिटर नहीं है। एडिटर नहीं है। तो अब इसका दरअसल दो पहलू है। एक पहलू ये है कि एडिटर्स ने जब उनके पास समय था तो शायद उन्होंने अंकुश कुछ ज्यादा लगा रखा था, और जिसको हम कहते हैं कि ये क्रिएटिव मीडियम है, तो उस मीडियम का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से किया, एक ये बहुत खराब काम किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं सिटीजन मीडिया कहता हूं, नागरिक माध्यम कहता हूं, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है, मीडिया का लोकतांत्रिकरण है। लेकिन हाँ, ये खतरा बहुत बड़ा है कि इस समय भी यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, दुनिया भर के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर लोग बिना किसी जानकारी के, और मैं इसलिए ये बात और थोड़ा ठीक से करना चाहूंगा कि मैं जो गूगल न्यूज इनिशिएटिव का जो फैक्ट चेकिंग का प्लेटफॉर्म है उसके साथ में जुड़ा हुआ हूं, और इनफैक्ट मैंने ट्रेनिंग भी ली है उसको फैक्ट चेकिंग की। मेरा ये मानना है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी महामारी है जो इस वायरस से भी खतरनाक है, और उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। उनके हाथ में एक टूल आ गया, जो आपने कहा कि मोबाइल आ गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, सस्ता मिल रहा है, तो उन्होंने कुछ भी करना शुरू कर दिया। मेरा ये मानना है कि अगर आप व्यक्ति के तौर पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो कैसे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिहेवियर होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप, जिनको आप सामाजिक माध्यम कहते हैं, वहां असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, या जिसको मैंने एक शब्द कहा था कि सभ्यता असभ्यता, तो असभ्य व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस मीडियम के योग्य नहीं हैं, आप उस मीडियम के लायक नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये सबको सोचना चाहिए कि हमारे पास जो मिला, हम उसके लायक हैं क्या। चाहे हमारे अपने जीवन में जो सुविधाएं मिलती हैं, हमें जो जो कुछ भी मिलता है, तो इसी तरह से अगर हमें ये डेमोक्रेटाइज्ड मीडिया मिला, हमें इतनी बड़ी ताकत मिल गई। आप सोचिए ना कि आप घर बैठे देश के किसी भी बड़े मीडिया हाउस से आप कंपीट कर सकते हैं। अगर इतनी बड़ी सुविधा, इतना बड़ा आपको एक विकल्प मिला, तो उस विकल्प का आप उपयोग ठीक से कर रहे हैं क्या। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम और आप इस सच्चाई से अपनी आंखें मिलाएं, और हम इस बात को समझें कि कोई भी युद्ध 3 तलों पे लड़ा जाता है, 3 स्तरों पर कोई भी युद्ध लड़ा जाता है। एक होता है उसका दैहिक स्तर, जिसको हम स्थूल या फिजिकल कहते हैं, और वहां आप भी कह रहे हैं, वहां पे लड़ाई वो मेडिकल विभाग वाले लड़ रहे हैं, वो डॉक्टर लड़ रहे हैं, वहां हमको अस्पताल में जाकर के वो दैहिक लड़ाई लड़नी पड़ती है। दूसरी एक लड़ाई होती है भौतिक। ये महामारी सिर्फ हमको शरीर से नहीं मार रही है, ये हमारा कारोबार बंद कर रही है, ये हमारे व्यवसाय चौपट कर रही है। ये महामारी चली भी गई तो भूख हम में से कितनों को मार देगी, कितनों को अपराधी बना देगी, कितनों का घर उजाड़ देगी। इसीलिए भारत में बड़ा ही सुंदर सिद्धांत है कि कोई विपत्ति आती है तो वो 3 स्तरों पर आती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो यह महामारी भी इन्हीं 3 स्तरों पे हमको मारेगी। भक्त तुलसीदास भी कहते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज। राम के राज्य में ये कहीं नहीं व्याप्त है। तो राम राज्य की परिकल्पना करने वाला राष्ट्र हर एक समस्या से लड़ने का स्तर भी बता रहा है, और वो 3 स्तरों पे हमेशा जंग होगी। ये महामारी भी हमें 3 स्तर पे जंग कराती है। 2 के बारे में तो प्रधानमंत्री भी कहते रहते, सब कहते हैं कि जान भी और जहान भी, यानी दैहिक युद्ध भी हमको लड़ना है, लोगों की देह भी बचानी है, भौतिक युद्ध भी लड़ना है, लोगों का कार्य व्यवसाय, लोगों के घर में चूल्हा जलता रहे, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी है। लेकिन तीसरे को सभी इन दिनों भूल गए हैं। अच्छा है आप याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ताप अंत में दैविक होता है। दैविक ताप का मतलब ये ना समझे कि कोई ऊपर बैठा देवता क्रोध में हमें देख रहा है और बड़ा गजब ढा रहा है दुनिया को बर्बाद कर देने के लिए। देवता इतना सुंदर होता है कि वो दुनिया को बर्बाद करने की योजनाएं नहीं बनाता है। दरअसल देवता बसंत में खिलने वाले फूलों के बागीचे की तरह होता है। बसंत में आप 2 चीजों को हमेशा बसंत के काल में देखते हैं। बसंत ऋतु में फूल भी खिलते हैं और रोग भी बढ़ते हैं। सबसे अधिक बीमारियां बसंत ऋतु में होती है। जब भी ऋतु फूल रही होती है, फल रही होती है, उस वक्त प्रकृति सबसे अधिक रोगी भी पैदा करती है। Today the social responsibility is becoming very, very important, and people started realizing the importance of giving back to the society. As I mentioned to you earlier,
people didn't have that kind of felt responsible to give back to the society. But today, the younger generation, they always feel that they're responsible to give back to the society, and also they want to be a very responsible citizens. As you rightly said, the social media plays a very major role in making people to understand the social issues and also make the students, younger generation, to contribute back to the society. So I think this awareness has started increasing over the period of time, especially the new technology, that is IT technology, when people started using like social media and other forums are helping to improve the awareness of the social issues. So today I could see the younger generation is also very keen to contribute to society back. As I have seen in my own campus, we have seen a lot of students are taking interest in the social activities, and every year we do a course on manager in society. In manager in society, a program, what we do is we do it in 3 stages. The first stage, as a student, what is their responsible to contribute to the society? As an individual, they take up one campaign. For example, mass tree plantation campaign or waste management. As an individual, they use a particular social media and try to develop the campaign and make the people to aware. The second one, what we try to do is we ask them to participate in one NGO activities. For example, they have to go to a particular NGO and try to help them to, it may be marketing their own products in the NGO or a campaign for fund mobilization or some awareness campaign. So this is what second stage they do. In the third stage, what they do is they themselves develop a particular program and start working on that. I can give a number of examples on this kind of a campaign where, for example, the one campaign, what they've done was they adopted a school. A particular school required toilets and bathroom. They collected money and they constructed the bathrooms and toilets also. And similarly, again, the gender. I think the cross-gender issue is one of the major issue. So these people are not having economically sustainable income. So what these people did was they mobilized a training program to make these people to develop certain products. So they gave a training for 1 week, and then students also continue to coordinate with them to get their products and market their products. Again, this is another project where they have got involved. सरकार को होमवर्क होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए. इस समय में विजनरी नहीं है, तो विजनरी नहीं है, होमवर्क नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है, प्रतिष्ठा करेगा तो लोग मरेगा. इस देश को बचाने का समय है, इसीलिए हम ज्यादा पॉलिटिक बात नहीं रखना है, बट उनको समझना है, बट देश को बचाने का समय है. हम सब लोग मिलके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना है. आपको धन्यवाद करता हूँ दोबारा. मिर्ची ब्रांड को ही समझे, मिर्ची, रेडियो मिर्ची हमने कहना बंद कर दिया, रेडियो लोगों में इसमें निकाल दिया. बिकॉज डिजिटल बूम के साथ रेडियो तो हमारा कोर स्ट्रेंथ है ही, राइट. हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी हम इवॉल्व होना चाहते थे, हम ट्रांसफॉर्म होना चाहते थे डिजिटल कंटेंट और सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी की तरह. तो हमने पहला स्टेप लिया. अभी हाल में ही एक हमने कैंपेन लॉन्च किया, हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है, और हमने हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है बोल के रेडियो ड्रॉप कर दिया लोगों में से. तो मिर्ची ब्रांड भी इवॉल्व हुआ, और अभी फिलहाल मैं ब्रांड सोल्यूशन को ही हेड कर रहा हूँ नेशनली. जो हम ब्रांड्स के लिए सोल्यूशंस बनाते हैं, तो मैं बहुत अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ इस सवाल से कि किस तरह से ब्रांड्स इवॉल्व हो रहे हैं. और मैं दिन रात कॉर्पोरेट से लेकर रिटेल ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम काम कर रही है. तो प्री कोविड तो बहुत ही क्लियर फोकस था बिजनेस प्रॉफिट. ड्यूरिंग लास्ट 18 months, most of the brands are talking about positive energy. They are talking about helping each other. They are talking about hope. All the brands have become sunshine brands. तो sunshine मतलब कि भरा गिलास देखना, खाली नहीं देखना.
समस्याएं हैं जिंदगी में, लेकिन हम क्या रोल अपना सकते हैं, वो ब्रांड आपके लिए पॉजिटिव कैसे हो सकता है वो कर रहे हैं। सारे लोग की कैंपेन यही चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे ब्रांड्स, अभी एक एक एडिबल ऑयल ब्रांड है, वो क्या बोलेगा इसमें इस कोविड के सिनेरियो में? तो उसको नहीं पता कि वो अगर देखा जाए तो कोई रीजन नहीं है उसके पास बोलने का, कैंपेन करने का। बट हमने देश के बहुत बड़े एडिबल ऑयल के साथ एक कैंपेन किया, बड़ा कैंपेन किया, और लोकल फॉर वोकल के अराउंड हमने ये कैंपेन बनाया, एक गाना बनाया और बताया कि किस तरह से देश में लोकल चीजें हो रही हैं। वो अपने ब्रांड, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसने बात ही नहीं की। सो अभी मार्केटिंग भी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, जहां हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ब्रांड की फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, उस ब्रांड की जो कोर स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी हम जो 3-4 कैंपेन बड़े डिस्कस कर रहे हैं उसमें या अमेजोन के साथ भी हम कैंपेन कर रहे हैं। अमेजोन ये अब नहीं बोल रहा है कि तुम आओ और मेरे यहाँ से दुकान से खरीदो सामान। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में ये कम्युनिकेशन बहुत तेजी से बदला है। पहले बहुत क्लियर था, अपनी दुकान तुम आओ और खरीदो। अभी वो भी ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। अभी वो उनका भी कम्युनिकेशन है कि ऑक्सीजन की कमी को खत्म करे। पेटीएम जैसा बड़ा ब्रांड ऑक्सीजन पे काम कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है उसको, राइट? लेकिन वो उसको मालूम है पूरा देश जहाँ पर है, कंज्यूमर जहाँ पर है, वहां अगर वो नहीं रहेगा, उसकी सोच के साथ नहीं चलेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। सीएसआर तो अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट में एक फिक्स होता है कि भाई ये करना है। जैसे मिर्ची का सीएसआर बहुत फिक्स था। हम ए आर रहमान की एकेडमी के साथ काम करते थे और म्यूजिक के फील्ड में जो गरीब बच्चे हैं, इसमें टैलेंट है, उनके साथ मदद करते थे। लेकिन अब हमारी भी सोच बदल रही है। हम भी अगर हर इंसान भी ब्रांड है, वो भी देख रहा है कि अगर मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं चीजों से हट रहा हूँ। अगर आज की डेट में भी कोई आदमी है जो सिर्फ रोज और रोज शेर शायरी ही डाले जा रहा है, रोज सिर्फ और सिर्फ कहानियां ही सुनाए जा रहा है, तो वो इररेलेवेंट। हम और आप ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बातें हो रही हैं, सबके मन में ये सोच है कि क्या होने वाला है। अगर हम ये बातें ना करें और आज भी हम बात करें कि अच्छा क्रिकेट आईपीएल कैसा हुआ, कौन जीत रहा है, तो हमें देखने वाले हमें नहीं देखेंगे। जब आप अपने को समझने लगेंगे कि भाई हमारे इस काम से किसी को क्या नुकसान हो सकता है, वो गांधी जी वाली बात है कि कोई काम अगर आप करते हैं तो आप ये सोच लीजिए देश का सबसे कमजोर आदमी उस पर क्या असर पड़ेगा। तो उसी तरीके की चीज है ये कि जब आप जो है अपने आप समझने लगोगे कि हमारी जैसे फेसबुक फॉरवर्ड हो गया या और भी चीजें, अब हायरार्की की आप बात कर रहे थे कि तमाम संपादक होते हैं, चीजें होती हैं, अंकुश होते हैं। एक किस्सा मैं आपको और बताता हूँ, आज तक का ही किस्सा है। बनारस से एक खबर आई कि यहाँ पर एक हवाई जहाज जो है उतरा और फिर ऊपर उड़ गया। 3 जो है छलांगे लगाकर वो जो है दुर्घटना से बच गया। जब वो वीडियो आया तो इंडिया टीवी ने चलाना शुरू, इंडिया टीवी था या पता नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, दूसरे चैनल ने चलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर प्रेशर हो गया और जो बंदा एविएशन कवर करता था उसने जो है कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमारा सोर्स कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन बनारस का स्टिंगर वो भेज रहा था और उस खबर को चलाया गया। उससे कहा गया तुम मूर्ख हो, तुमको पता ही नहीं है। और सीनियर जर्नलिस्ट था, उस पर इतना प्रेशर बना दिया गया कि उसने कहा नहीं हम नहीं चलवा सकते, और वो खबर चली। पता चला वो कोई बाहर की विदेशी ब्रांड थी जिसका एड था, वो उसको जो है लोगों ने सीडी दे के चलवा दिया। तो अंकुश की जब हम बात करते हैं, अंकुश होता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था? कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा था, टीआरपी के मामले में पिछड़ रहा था आज तक, और नंबर 1 नंबर 2 वाली आपस में लड़ाई चल रही थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सही गलत में ही फर्क नहीं करोगे, आप उस रेस में चले गए जिस रेस में आपको नहीं जाना है, तो यहाँ पर अंकुश जरूरत होती है संस्थान की। What is happening in the pandemic is so much. There are in many ways, little or big. I think we can do a lot to the society today because the empathy is there. We all know, and the situation what we are facing, we really know what situation each one or each family is facing, because as I told earlier, it was somebody else. But today it is our friends, our close relatives who are facing problems, and we know that, and we are all feeling
the pain. And I think so. At this time, this is the time to give back, and the happiness that we see, or by giving, or the happiness that and the and the help that we that the the needy gets, is much more through my social responsibility, is what I feel. So I would request all youngsters, because we have the power of making some people happy, and in the end of it all, seeing that the society is the society is there is some kind of giving to the society, or giving back to the society. So I think I would request everybody to be my socially responsible. संस्कृति जो है वो इसी पे बेस्ड है। कथाएं हमारे यहाँ पूजाओं में कथाएं होती हैं, है ना। हमारे यहाँ हर चीज के लिए जो है ना स्टोरी टेलिंग का बड़ी समृद्ध परंपरा रही। लेकिन हमें ये लगा कि हमने वो त्याग के हम किस तरीके की फिल्में बना रहे हैं, कितनी फूहड़ता परोस रहे हैं, कितना इसका विपरीत असर पड़ रहा होगा बच्चों पे, आने वाली जनरेशंस पे। तो हमें लगा कि नहीं, अपने जीवन में हम ये तो नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि हमने जो भी सीखा है इस क्राफ्ट को इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर करके, ईश्वर ने हमको मौका दिया इसको बहुत अच्छे से तराशने का। तो हम अपने हुनर को, अपनी शफा को, हम जो बहुत अच्छे पहलू हैं हमारी संस्कृति के, हमारे देश के, हमारे समाज के, उनको बहुत अच्छे से हम उनके प्रेफरेंस बना के लोगों के सामने रखेंगे, जिससे कि लोग, हमारे देश के वासी, हमारे आने वाली जनरेशंस के लोग, हमारी युवा पीढ़ी, वो उससे बहुत प्रेरणा पाए उसको देख के, और बहुत नजदीक से जाने अपनी संस्कृति को, अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को। आर्टवर्क देखते ही दूसरे को ऐसा लगना चाहिए कि यस, दिस स्पीक्स टू मी। इट शुड नॉट बी सो एब्स्ट्रैक्ट दैट वन लूजेस themselves, right? This is a time of healing, this is a time of nurturing, this is a time for nourishing. Can we have that aspect incorporated by students? Can they create works just by looking at them, logon se immediate connection baithe? So that is one more element I would personally suggest. Teesra, one should keep themselves abreast with what is happening internationally, and not to copy that, but to understand the best practices from that and put it into local context, right? One should also read different artist statements, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कई बार आदमी अपने आप को उतनी अच्छी तरह उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो पढ़ के भी आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है अपनी बात रखने के लिए। So थोड़ा वर्सेटाइल सोचिए, दुनिया में देखिए क्या चल रहा है, और उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में अपनी सभ्यता या अपने जो आपके मोटिव्स हैं उन पे अप्लाई करके मेक इंडियन आर्ट ग्लोबल। देखिए, सस्ता ही लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज जितनी रेयर होगी उसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप किसी भी ढाबे में चले जाइए, चने की दाल में कभी कोई मिलावट नहीं करेगा, तो वो सबसे सस्ती होती है। तो बेसिल ऑयल सबसे सस्ता है, ठीक है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज क्या आप कर सकते हो कि घर के अंदर 3 मुख्य चीजें हैं, लाइट, एयर, ठीक है, लाइट, एयर और क्लीनलीनेस। ये 3 चीजें आप कर दीजिए, आपका घर काफी हद तक सही हो जाएगा। जो बैड इफेक्ट्स है वो खत्म हो जाएंगे। पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए। टॉयलेट्स के अंदर, टॉयलेट जो सबसे मेजर जगह है, उसका दरवाजा हमेशा बंद रखें, कमोड का ढक्कन बंद रखें, ये जरूरी है। उसके बाद कई अब नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्प्रिंकल आप सिर्फ ब्रह्म स्थान में बेसिल ऑयल कर देते हैं, लेवेंडर का यूज कर सकते हैं, तो लेवेंडर और बेसिल ये 2 अलग अलग चीज, अलग अलग, मतलब दोनों को मिलाना नहीं है। तो दोनों का स्प्रिंकल आप अलग अलग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऑटोमेटिकली शुक्र, देखिए लेवेंडर में शुक्र और राहु दोनों की बैलेंसिंग है, वो बड़े ही आराम से हो जाएगी।
तुलसी में बुद्ध है, तो बुद्ध से ब्रह्म स्थान हो गया, प्लस हमारा रेस्पिरेशन हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज लेवेंडर को यूज करने से क्या होगा कि जब शुक्र बैलेंस होता है, जब साउथ ईस्ट बैलेंस होगा, तो जो डर है अंदर का वो खत्म हो जाएगा, जो संतुष्टि है वो आनी शुरू हो जाएगी। जब तक अंदर का डर खत्म नहीं होगा तब तक अंदर से आप कोरोना नहीं मिटा सकते। तो ये दो चीजें ही आप कर लें, और ये लेवेंडर और ये बेसिल, होली बेसिल के नाम से आता है, इंग्लिश नाम तुलसी के नाम से आपको नहीं मिलेगा असली, आप बेसिल BASIL बेसिल या होली बेसिल नाम से मिलेगा आपको हर जगह, उसको मंगा लीजिए। लेवेंडर के नाम से ओरिजिनल एसेंशियल ऑयल बहुत सारे एसेंशियल हैं, आपके कामा है, बहुत सारी कंपनीज है, अरोमा वास्तु, बहुत सारी कंपनी में मिल जाता है, और आराम से आपको यूज करिए, उसको इसको जीवन का एक पार्ट बनाइए, आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके बहुत आनंद आएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। और एक और रिक्वेस्ट है, इतना आप लोगों ने साथ दिया, इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इस कैंपेन के बारे में अपनी ओपिनियन जो भी हो दिल खोल के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे हमको आइडिया मिलती है कि हम अगला अगर कुछ सोचें तो किस तरीके का सोचें, किस डायरेक्शन में सोचें। तो प्लीज अपने ऑनेस्ट कमेंट और ओपिनियन जरूर दीजिएगा, ताकि हमको और हमारी टीम को मदद मिले आगे कंटेंट बनाने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।